Ladies and gentlemen, please be seated. We're about to begin our session. You're requested to switch off your mobile phones or put them to the silent mode. We would greatly appreciate if complete silence is observed while the session is in progress. Now we begin our session titled Pakistani Cinema Kal aur Aaj, which is being presented by Habib Bank Limited and United Bank Limited. We are grateful to United Bank Limited for sponsoring our two guests, Bahar Begum and Shehzad Rafiq, and would like to thank Habib Bank Limited for sponsoring our guests, Asif Raza Mir and Jiali. The panelists of our today's session are Asif Raza Mir, Yasir Jaswal, Bahar Begum, Jia Ali, and Shehzad Rafiq. And the session will be moderated by Raju Jamil. Karachi-based TV personality Zulkarnain Jamil Ali, popular as Raju Jamil, was a banker by profession and retired as Senior Vice President, Head Social Media at UBL after 40 years service. Over more than 47 years in show business, he has acted in over 200 serials, 50 single plays, and 20 English stage plays. He anchored the well-known Weekend with Raju Jamil, a late-night TV show. Raju Jamil, since his teenage, has been an ardent admirer and supporter of Pakistani cinema. Let me tell you, the duration of the session will be 60 minutes. There will be a question and answer session at the end of the discussion. Please keep your questions short and precise and refrain from making a statement. You're further requested to raise your hands and the microphone will be brought forward to you. Over to you, Jamil sir. Assalamu alaikum Khawateen Hazrat. We'll keep it both in Urdu and English, but mostly in Urdu. क्योंकि पाकिस्तानी सिनेमा की बातचीत होगी. I'm so grateful to you for the kind introduction and all the team members here. And I'm ख़ास तौर पे मैं इन सब का ममनून हूँ क्योंकि अदाकारों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना मेरे ख्याल में उससे बड़ा मुश्किल काम कोई नहीं है क्योंकि everybody is so busy in work that they hardly give any date कि वो मैं फ्री हूँ उस दिन या नहीं क्योंकि almost 24/7 they are busy. I'm including the director in it obviously. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू बल्कि शहजाद का तो मैं ख़ास तौर पे इसलिए शुक्रिया अदा करूँगा कि मैंने इनको कल कहा तो ये शूट को छोड़ के कराची में सुबह 7 बजे आए और लुटे मरे बिल्कुल जैसे होते हैं मुसाफिर और ये फिर भी इन्होंने आके ज्वाइन किया और ये बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में आजकल डायरेक्शन में. मैं एक आगे चल के बात करूँगा. रही सब्जेक्ट की बात पाकिस्तानी सिनेमा कल और आज, मैं इब्तिदा उसके बारे में इस तरह करता हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का उरूज शुरू हुआ था 1950 से और चला है सन 70 तक. उसके बाद 80s की एंड तक भी बहुत अच्छा रहा चला और कई अच्छी फिल्में आई. 90s के मिड के बाद से कुछ डामाडोली शुरू हो गई और बैठना शुरू हो गया. ऑब्वियसली फैक्टर ऑफ आवर नेबर्स और आप और हम का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, तो थोड़ा सा रीजनली बड़ा अच्छा चला मामला और रीजनली बहुत कामयाब रहा. पंजाब की फिल्मों ने बहुत तरक्की की. लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ग्रिप कर गई वहाँ के सब्जेक्ट पे वहाँ के. मगर ऑन द होल इफ़ यू लुक एट इट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान सिनेमा इन उर्दू जो कि हम कहते हैं बड़ी मशहूर फिल्म है, वो कुछ ऐसी जद में आई कि वो बिल्कुल ज़मीन से लग गई. एक्चुअली दे वर रियली आई वुड से दे गॉट बरेड. मतलब वो बात नहीं रही जो हम 7 लाख या सहेली जो बैठी हुई हैं, सहेली की कास्ट मेंबर हमारी बहार बेगम. आई वॉन्ट यू टू गिव हर अ वेरी बिग हैंड. शी इज़ अ ग्रेट नेम and she is the only
She is the only film star of Pakistan to have done Cambridge, mashallah. And she is our asset in the film industry. तो वो फिर कुछ सिलसिला ऐसा हुआ कि हर चीज़ दब के रह गई. Then came the new generation, और उसके बाद कसमा हल्फी और वलवले और उम्मीदें और सब एकदम हर एक ने ग्रिप कर लिया. और वो उसकी इम्पैक्ट जो आई है वो प्राइवेट प्रोडक्शन से, टेलीविज़न ड्रामों से एक किस्म का बर्थ हुआ और कि अब फिल्म को जगाना है. मगर वो जो फिल्म जागी तो वो इस तरह जागी कि वो उसका ज़्यादातर फोकस, जो कि होना चाहिए, मैं उस पर इतराज़ नहीं कर रहा, कमर्शलाइज ज़्यादा हो गया. कि वो अगर मैंने 3 करोड़ लगाने हैं तो मुझे 5 करोड़ आएंगे या नहीं आएंगे, फिर मैं फ़िल्म बनाऊंगा, और आ भी जाते हैं. मगर फिल्मों की स्टोरी कुछ ऐसी इम्पैक्टिंग, मेरे नज़र से, आई एम श्योर ये लोग आर्ग्यू करेंगे और उस पर ज़रूर मुझसे इख्तलाफ करेंगे, जो मैं वेलकम करूँगा, मगर वो स्टोरी का इम्पैक्ट, वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही, या टाइम लगेगा शायद आगे. कि जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ, 7 लाख फिल्म मैंने 1958 में देखी थी जुबली सिनेमा में, और उसका डेब्यू था नीलो बेगम का उसमें. और उसमें उन्होंने एक गाना गाया था, हाय मौसम रंगीले सुहाने जिया नहीं माने, और मैं आज तक वो गाना गाता हूँ. आए मौसम रंगी सुहाने, जी हाँ जी हाँ. और सबिया और संतोष, सबिया अपने ब्रिशेस पहने हुए, हाथ में स्टिक लिए हुए, एक पुरानी कैडिलैक में संतोष के साथ उतर के टहल भी रही हैं. मुझे तो इस हद तक याद है, हालांकि कब देखी थी वो मुझे ध्यान में नक्श है फिल्म, वो गाना. और फिर लोगों ने मुझसे कहा कि यार वो तुम उस दौर की बात कर रहे हो जो तुम लोगों का दौर था या तुम्हारा दौर बन रहा था. अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, अब यंग जनरेशन कुछ और कर रही है. मैंने कहा मैंने इस यंग जनरेशन को हर मेहंदी और मेहंदियाँ और ढोलकियों में कोरीना गाते हुए देखा है, जो 1966 में फिल्म बनी थी. वो कैसे गा रही हैं ये, वो क्यों गा रही हैं? और मुझे खुदा को हाजिर नाज़िर जान के नाज़रीन आप बताइए, और मैं इनसे भी पूछ रहा हूँ, आज से 40-50 साल बाद आज की जो फिल्में बन रही हैं, उनका कोई ऐसा गाना होगा जो 50 साल बाद कोई गा रहा होगा, कोई याद कर रहा होगा? कोई राजू, कोई आसिफ रज़ा मीर, कोई यासिर जसवाल, कोई जिया अली गा रही होगी? आजकल की फिल्म का कोई गाना ऐसा इम्पैक्ट कर रहा है? सैफुद्दीन सैफ के गाने और ये वो, भाई उन्हीं गानों को ले आओ, किसी और तर्ज में पेश कर दो, फिल्में बनाओ ऐसी जो फैमिली वाइज हों. तो पाकिस्तानी सिनेमा कल और आज पे मेरा मौजू यहाँ से शुरू होता है. अब मैंने अपने ख्यालात का इज़हार करना था, आई कुड बी रॉन्ग और राइट, आई डोंट नो, दैट इज़ टाइम टू प्रूव, मगर अब मैं आगे लेके चलता हूँ, बिकॉज वी वुड वांट मोर क्वेश्चन फ्रॉम द पीपल. एंड 1 घंटा है, मगर हमारे पास एडवांटेज ये है कि हमारे बाद कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि लंच है, तो हम 5-10 मिनट ज़रा खींच लेंगे राइला की इजाज़त से, कि थोड़ा सा 2-3 मिनट और दे दें ताकि हम सवालात ले लें. सबसे पहले मैं सीनियर मोस्ट जो हमारी अदाकारा हैं यहाँ, बहार बेगम, उनसे शुरू करूँगा, एंड इट शुड बी दैट वे. मैं इनसे ये एक सवाल करूँगा कि बहार बेगम ये बताइए कि आप 1955 में माशाल्लाह आपने अपनी डेब्यू की थी विद फुल मूवी कॉल्ड चंद माही. 56 चंद माही ना, एम आई ओके? राइट, बटन दबा दीजिए, वाइट बटन दबा दीजिए. हाँ, चंद माही वॉज योर फर्स्ट मूवी? यस, राइट, योर डेब्यू. मुझे बताइए क्या मैजिक था कि वो फिल्मों में हम खालाएं फुप्पियाँ पूरे नाश्ते वाश्ते लेके जाके बाकायदा एक पिकनिक के तौर पे देखते थे, पिक्चर भी इंजॉय करते थे और बड़े सेटिस्फाइड आते थे. और वो फिल्म 1 साल बाद या 1.5 साल बाद फिर डिमांड किया जाता था डिस्ट्रीब्यूटर को लिख के और ख़त लिख के कि उसको फिर से लगाइए. तो वो वक्त और आज का वक्त के बड़ी काफ़ी फिल्में रिलीज़ हुई हैं रिसेंटली, तो वो तो कुछ लोग भूल भी गए हैं कि कुछ फिल्म रिलीज़ हुई थी. तो ये क्या वजह है? व्हाट्स द डिफरेंस? व्हाट वाज द मैजिक इन यू पीपल दैट यू मेड सच मूवीज व्हिच आर स्टिल रिमेंबर्ड? अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन. राजू जी, वक्त चेंजेस आते हैं वक्त में. ये ठीक है कि एवरी 15-20 ईयर्स एक
चेंज आता है। ये अब जो चेंज आया है बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टेक्निक के हिसाब से, ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। उस वक्त जब जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त बहुत एक सिंपल और बड़ा सीधा साधा वक्त गुजर रहा था। लोगों को पिक्चरें भी वैसी ही अच्छी लगती थीं, जो उनके घरों में जो कुछ हो रहा था वैसी ही फिल्म्स भी बन रही थी। आई रिमेंबर उस वक्त मैं काम तो नहीं कर रही थी, आई वॉज अ स्कूल गोइंग गर्ल कहूँगी बट उस वक्त में लेडीज़ शो भी होते थे। वेडनेसडे को लेडीज़ शो होता था और उस वक्त आई रिमेंबर हमारे घर से भी बड़े टिफ़न शिफन तैयार होते थे कि जी सिनेमा जाना है, सारा दिन वहाँ पे खाना भी खाना है और ये वो सारा, वो इस टाइप के माहौल थे। आज जब आप कहते हैं कि बहुत डिफरेंट हो गया है, डेफिनेटली हुआ है, और ये कोई आज की बात नहीं, फ्यू इयर्स लेटर एक्चुअली वक्त बहुत फास्ट हो गया है। एजुकेशन को आप ले लीजिए, इट्स नॉट ओनली फिल्म्स, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत से चेंजेस आ गए हैं। हमारे यहाँ ज़रा ड्रास्टिक चेंज ये आया है कि हम एकदम से मॉडर्न होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम अंदर से मॉडर्न नहीं हैं, दिखावे के मॉडर्न हैं। घरों में वो कुछ नहीं है जो हम बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं या दिखाते हैं। जहाँ तक फिल्म का ताल्लुक है, वी नीडेड अ चेंज। देखिए एक दौर बीच में आया था जब एक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। एक्शन फिल्म्स ऑल ओवर बनी, जहाँ जहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो लोग अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर करते गए, हम एक गंडासा लेके बैठे रहे। उस गंडासे को हमने कब्र में से भी निकलवा दिया, उस गंडासे को हमने तलवारों की तरह चला भी दिया। वो दैट वाज आवर फॉल्ट, क्योंकि चेंज का मतलब होता है डेफिनेटली चेंज। जहाँ तक अब ताल्लुक है, मैं समझती हूँ कि आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, आई एम नॉट अ डायरेक्टर, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ। और जैसे पुतली का नाच होता है ना, पुतली वाले ऐसे ऐसे करते हैं, हम वो नाचने वाले हैं। तो इसलिए मैं एज एन एक्टर तो बता सकती हूँ कि व्हाट वी नीड, नॉट एज ए प्रोड्यूसर। हमारे ये रफीक साहब बैठे हैं, बहुत गुड प्रोड्यूसर, वेल एजुकेटेड पर्सन। इन लोग ये डायरेक्टर भी हैं, ये बहुत कुछ बताएंगे। आसिफ रज़ा मीर ने भी बहुत कुछ अपने चलते चलते देखा है, टीवी में भी, टेलीविज़न में भी, आई मस्ट से। एनीवे, अब जो चंद एक पिक्चरें मैंने देखी हैं, मेरे पल्ले नहीं पड़ी वो पिक्चरें। क्या ये बस इधर ही मैं कोशिश कर रहा था कि आप इधर आ जाएं। हाँ। थोड़ी सी तमहीद बांध रही थी। मुझे नहीं समझ आई कि मैं फिल्म देख के निकली हूँ या 8-10 न्यूज़पेपर पढ़े हुए थे, उनकी कटिंग्स पढ़ के निकली हूँ बाहर। तो ड्रामा जी नहीं, टीवी ड्रामा ठीक है, वो अपने हिसाब से। वी आर टॉकिंग अबाउट फिल्म्स, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस टेलीविजन। आप टीवी के हैं, आप ज़रूर उसको डिस्कस कीजिए या उनके साथ कंपेयर करें। यहाँ हम किसी को बुराई देने नहीं बैठे, अपने फॉल्ट्स गिनाने बैठे हैं कि वाई वी आर ऑन दिस स्टेज नाउ। बार बेगम, आई एम इंटरफेयरिंग यू इधर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इतनी अच्छी फिल्में, और काफ़ी 1-2 साल से 3-4 साल से फिल्में ये बड़े मॉडर्न टाइप बन रही हैं, और मैंने खुद भी देखी हैं, मगर मैंने सिर्फ उनके रेड कारपेट पे गया हूँ, वहाँ जाके देखी हैं। मेरी ख्वाहिश नहीं हुई कि मैं उनको दूसरी दफ़ा देखूँ जाके। अरमान फिल्म मैंने कुल 150 दफ़ा देखी है अब, जब से वो रिलीज़ हुई है। Really? 66, जी हाँ। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग हियर, आई एम नॉट, ऑनेस्टली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। मुझे उसका एक एक डायलॉग याद है, वहीद मुराद का और ज़ेबा का और वॉट एवर। आज मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़ेबा ने आना था, बट शी हैड रिसेंटली हैड द एंजियोप्लास्टी डन। शी कॉल्ड मी यस्टरडे एंड शी अपोलोजाइज्ड, वरना आ रही थी यहाँ और मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर होता। बहरहाल, मैं इस वक्त जो होता है, फिल्म बनती है तो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर जो तवज्जो दी जाती है वो रेड कारपेट पे, जिसपे 1.5 लाख का जोड़ा पहना हो जाता है, कैमरे की बूटी होती है और बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। उन कई फिल्मों में से एक आध फिल्मों ने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जो आपको हिट किया है, मगर रेस्ट
मैं तो भूल भी गया हूँ कि कौन सी फिल्में रिलीज हुई Exactly. थी। अब बिल्कुल अब ठीक है। इसी को आगे चलाते हुए फ्रॉम योर ओल्ड डेज आपने अपना बहुत अच्छा डिफाइन किया। आई कम एग्जैक्टली टू द मॉडर्न एरा नाउ एंड द लेटेस्ट वन विच हैज क्रिएटेड एन इम्पैक्ट एंड डन वेल। मैं आता हूँ यासिर जसवाल पे। यासिर जसवाल, योर मूवी जलेबी, I heard it did very well on the as far as commercial still- impact is it's- concerned. जी, it's still in cinema. 71 cinema halls you released it. जी आपके जहन में क्या था? Did you had any thoughts about the old cinema of Pakistan, or you wanted to go straight to the new thought? और क्या? What was the idea? Okay, how to force the people to come and stand in line, buy the ticket, and go and see the movie in the cinema hall? First of all, thank you so much. I'm sitting here with so many great people in front of such a great audience that actually cares for this industry and has taken time out. So kudos. मैं सिर्फ ये कहूँगा जी कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो एक चैनल, दो चैनल होते थे, एक NTM होता था, एक PTV होता था, और NTM पे रोज़ रात को फिल्में लगा करती थी। वीकेंड पे इंग्लिश फिल्म लगती थी और वीकडेज में उर्दू फिल्म लगती थी। तो फिल्में बहुत देखी, हमेशा से देखी, और मुझे स्टोरी टेलिंग का बड़ा शौक़ था। लेकिन वो काफ़ी बचपने की बात थी। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि जब हम एड्स बना रहे होते हैं और सारा कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी होती है और बड़ा ज़बरदस्त कैमरा वर्क होता है। लेकिन जब फिल्मों की बात आती है तो वो एक ही तरह की फिल्में देखी जा रही हैं। और इट्स नॉट अ सरप्राइज़ कि हमारी इंडस्ट्री क्यों गई, जिस तरह उन्होंने कहा कि एक कल्चर चल गया था, और मैं तो कहूँगा हमारी इंडस्ट्री को हाईजैक कर लिया गया था बाय स्मॉल ग्रुप्स, जो कि सिर्फ उन स्मॉल ग्रुप्स के लिए फिल्में बना रहे थे। और इसलिए जब which moved me the most to make a film was the fact कि जब भी मैं देखता था वो फिल्म, मुझे लगता था यार नहीं, बेहतर काम हो सकता है और किया जा सकता है। और वो बेहतर काम इस तरह होता है जब ढेर सारे अच्छे लोग, क्योंकि किसी एक बंदे की फिल्म नहीं होती है, सारे एक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, प्रोडक्शन डिज़ाइन होता है। सो बहुत ढेर सारे लोग होते हैं, कोई 100-150 बंदा मिनिमम होता है जो कि एक सेट पे खड़े होके एक ही वक्त में एक ही मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं। तो जब वो सारे अच्छे लोग होंगे और उनकी नीयतें साफ होंगी और उनका ये पैशन होगा कि हमने एक फिल्म बनानी है जो कि जाके सिर्फ हमारा नाम ना रोशन करें बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तो आई थिंक एक अच्छा प्रोडक्ट ही निकलेगा। Tell me, why did you name the movie Jalebi? जलेबी उसका नाम इसलिए रखा था बिकॉज इट वॉज अ वेरी ट्विस्टेड स्टोरी, और उसके अंदर बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। और उसका एक डायलॉग था, व्हेन वी वर लुकिंग फॉर अ नेम वी वांटेड अ नेम जो कि दैट स्टिक्स विद द ऑडियंस, जो कि उसके अंदर इतनी वायरलिटी हो कि अगर कोई सुने उस नाम को तो उसको दोबारा याद रहे। तो इस वजह से उस फिल्म का एक डायलॉग था जिसके अंदर से हमने ये वर्ड निकाला था, और उस फिल्म के स्क्रिप्ट के ऊपर हम काम कर रहे थे, और वहाँ से वी केम अप विद द नेम जलेबी। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट, इट्स मोर ऑफ द फैक्ट कि बहुत से लोग जब काम कर रहे होते हैं एक इंडस्ट्री में, तो आपको बहुत से क्रिएटिव्स उसके ऊपर बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं। जिस तरह हमारा ड्रामा इंडस्ट्री है, हम बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं, और हमें बहुत शाबाश मिली है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो आज जब अगर मैं ड्रामा बनाने जाऊंगा तो मुझे 10 ऐसे लोग मिलेंगे जो कि एक्सपर्ट होंगे, ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस मिलेंगे जो कि एक लेवल का काम कर रहे हों, वो उस लेवल से नीचे अपना काम कभी आने नहीं देते। जब मैं फिल्म की बात करता हूं तो उस तरह का कभी माहौल बना नहीं। जिस ज़माने की आप बात कर रही हैं, उस वक्त फिल्में बन रही थी, उस वक्त आपके पास अच्छे स्क्रीन राइटर थे, अच्छे सॉन्ग राइटर्स थे, अच्छे स्क्रीन प्ले आर्टिस्ट थे, आपके पास अच्छे एक्टर्स थे, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था आपके पास। बनाए गए थे ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो पहले दिन से ही नहीं बन गए थे। जी, वो पहली जब पाकिस्तानी फिल्म बनी थी तब नहीं थे, वो उससे पहले थे। जब हिंदुस्तान था और पाकिस्तान और इंडिया नहीं थे, उससे पहले से बनते आ रहे थे। जी हाँ, जी हाँ। और इंडिया जो है वो चलता रहा उसी जगह पे, और हमने जो है उसको एक नोज डाइव में जाके क्रैश कर दिया। तो अब जो फिल्में बन रही हैं, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ठीक है, दे माइट नॉट बी द बेस्ट स्क्रिप्ट्स, दे माइट नॉट बी द बेस्ट स्क्रीन प्ले, दे माइट एस्पायर टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन ये वही बात है कि
हम एक यंग नेशन है, हमारी 65% पॉपुलेशन जो है वो यूथ कैटेगरी के अंडर फॉल करती है, और यंग नेशन एक हमेशा एस्पायरिंग नेशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करना चाहती है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा What's your concept of entertainment to the people who would come to see the cinema? देखिए, मैं ये बात कहूँगा कि बहुत इशू बेस्ड काम भी हो रहा है सिनेमा के अंदर, और आई थिंक उससे हमें थोड़ा सा हटना चाहिए, क्योंकि हम टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा रियलिटी देखते रहते हैं। जितनी रियलिटी हमारे न्यूज़ चैनल्स हमें दिखाते हैं, मेरे ख्याल से दुनिया में कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाता। चलिए, आपने वो ज़माना ना देखा हो, आपके पेरेंट्स ने देखा हो कि जो हमने देखा है। आई एम 65 ऑफ एज, मैंने बहुत ज़्यादा वो ज़माना देखा है। मैंने पाकिस्तान की कोई फिल्म नहीं छोड़ी पुरानी वाली जी। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उस किस्म का एंटरटेनमेंट, उस किस्म की इंजॉयमेंट, उस किस्म के गाने, उस किस्म की स्टोरीज, लव, रोमांस, ट्रेजेडी एंड ऑल दैट, ऐसे रोने वाले सीन के औरतें हिचकियां ले ले के रोती हुई सिनेमा हॉलों से निकली हैं। उनको उठाना, एक तो खातून बेहोश होकर गिर गई थी ना सिनेमा में, पता नहीं कौन सी फिल्म थी, इतनी ट्रेजिक थी वो कि वो जो मरा है तो लोग उठ गए कि इनको क्या हो गया कि यही न ख़त्म हो जाए। देखिए, वो इम्पैक्ट क्रिएट कर, या अभी भाग दौड़ एकदम हाई फ्लाई, हाई टेक, मैट्रिक्स, ये वो वाटर स्कूटर, बैंकॉक में जा रहा है, पीछे एक बिकिनी पहने हुए लड़की बैठी। आई मीन, तो you have to give me a very cogent response to that. The two that I would like to respond in a two-part answer. एक बात तो ये है कि तब की ऑडियंसेस और थी, अब की ऑडियंसेस और हैं। There you are. दूसरी बात ये है कि You have a supporters here. देखिए, बिल्कुल मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर वक्त वाटर स्कूटर और बकिनी में लड़कियां नहीं नजर आनी चाहिए। तो आप जाके देखें, मोस्टली जो फिल्म बन रही हैं उनमें कहीं पे बिकिनी वाली लड़कियां नहीं हैं। ये बातें ज़्यादा आने वाली है। देखिए, मैंने फिल्म बनाई है ना अभी, तो मुझे लोग कहते हैं, आधे लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने फिल्म में आइटम सॉन्ग रखा, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसा किसी ने मुझे गाली दी है, क्योंकि मेरी फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग नहीं है। और अगर कोई इस तरह फील करता है तो आई वुड लाइक टू करेक्ट दैट कि हमारी फिल्म में एक एक्टर हैं याले सरहदी, बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। वो जब उनका जो रोल था वो एक बार डांसर का रोल था, तो उनको हमने दिखाना था कि वो एक बार डांसर हैं और वो एक बार में डांस करती हैं। अब मुझे आधे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में तो बार होते ही नहीं है, तो वहाँ पे औरतें किधर डांस करती हैं। तो मैं उनको कहूँगा कि जाग जाएं, वो शायद सो रहे हैं। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि फिर वो नाच क्यों रही है। और ये देखें, अगर आपने फिल्म में एक बंदूक दिखाई और वो बंदूक कभी चली नहीं, तो आपने वो बंदूक क्यों दिखाई? आप उसका कोई रीजनिंग तो होनी चाहिए ना। और आइटम नंबर का जहां तक ऐसी बात है, बंदूक दिखाई जिसे एक बंदूक से 300 खत्म हुए हैं। तो अब उसमें जा रहे हैं। तो उसमें सिंपल बात यह है, ना तो वहां पे उनको कोई फाहिश कपड़े पहनाए गए, ना कोई उनसे फाहिश डांस कराया गया। तो इस तरह के बहुत से लोग इल्जामात भी लगाते हैं नई इंडस्ट्री के ऊपर। एंटरटेनमेंट जो है, ऑन दिस पॉइंट आई लाइक टू इन्वॉल्व आसिफ रजा मीर। आसिफ रजा मीर खुद एक अदाकार बड़े अच्छे रहे हैं, इनके वालिद बहुत अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। उनकी मैंने एक फिल्म देखी थी 20 दिन, और उसका एक गाना इंतहाई खूबसूरत नाहिद न्याजी की आवाज़ में, जाने क्यों ढल के मेरा दिल धड़ के मेरा दिल ढल के आंचल, आज तक मेरे जहन में है। और आसिफ को तो खैर याद भी नहीं होगा, ही वाज वेरी यंग, मगर आसिफ ने भी फिल्मों में काम किया। उसके बाद इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन अपना टेलीविज़न की तरफ आ गए। तनाइयों में इनका लाजवाल रोल था विद यास्मीन इस्माइल, एंड देन ही केम इन द प्रोडक्शन लाइन एंड नाउ ही इज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क। मगर उस दौर में जो पाकिस्तानी फिल्में कामयाब चल रही थी, कुछ फ्लॉप भी हो रही थी, आसिफ रजा मीर भी फिल्म इंडस्ट्री में थे। वॉट एवर यासिर जस्ट सेड, हाउ वुड यू कंपेयर टू योर एरा? सबसे पहले जी, थैंक यू वेरी मच, इट्स एन अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाऊंगा, थोड़ा सा चीज़ें करेक्ट करूंगा। एक तो ये है कि I was born in the film industry. My father was a film director and producer. His well-known films were Lakhon Mein Ek and Nagmani. फिर उसके बाद टेलीविज़न के बाद एडवर्टाइजिंग के बाद प्रोडक्शंस एंड देन ब्रॉडकास्ट। सो ये सफ़र रहा है।
I was 17 years of age when I did my first film. और फिल्म थी जिसमें नदीम साहब लीड कर रहे थे, बाबरा शरीफ थी उसमें. And those were great times as far as film was concerned. कंपैरिजन हम हमेशा चीज़ों का कर रहे हैं और आज भी हम इट सीम्स के टिल्ट ये है कि उस टाइम पे अच्छा काम होता था, आज अच्छा काम नहीं हो रहा. तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें आई थिंक नंबर्स और थोड़ी सी चीज़ों का हमें जहन में रखना ज़रूरी है कि पहला चेंज तो ये है कि आज आपकी स्टेज पे 4 आर्टिस्ट मौजूद हैं, उनमें से 2 आर्टिस्ट को एक बैंक ने स्पॉन्सर किया और बाकी 2 को एक बैंक ने स्पॉन्सर किया. बोले बोले आप. It never used to happen in the past. जी, I know. Today everything is commercialized. Yes, I know. We are sitting here, this whole event is commercialized. You forced us. I did not. So correction के पहले commercial नहीं होता था, आज commercial है. It was always commercial. Film has always been commercial. I know. I never And if disagree with that. anybody says कि पहले अच्छी फिल्में होती थी तो वो non-commercial था, nothing like that. I think बड़ा की फैक्टर एक जहन में रखना ज़रूरी है कि हमारी फिल्म को एक पीस बाय पीस डिसमेंटल किया गया. देयर वाज अ टाइम जिसको हम उस टाइम का जिक्र हमें नहीं करना चाहिए. उस टाइम का जिक्र हमारी पूरी मुल्क के ऊपर तो अपनी जगह है, लेकिन टेलीविज़न इंडस्ट्री के ऊपर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा था. और ये वो ज़ियाउल हक का टाइम था जिस वक़्त पीस बाय पीस आपकी टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री का सत्यानाश किया गया, जिसका इम्पैक्ट आज भी हम महसूस कर रहे हैं. हमारे जहनों को, हमारे लिखने वाले को, हमारे काम करने वाले को, हमारे डायरेक्टर को उनके जहन बंद कर दिए गए. हत्ता कि एक्टर को, अभी बहार बेगम ने कहा कि एक्टर कठपुतली है, लेकिन एक्टर की अपनी फीलिंग है. एक्टर के अंदर जब तक वो स्क्रिप्ट नहीं जाता, जब तक वो रोल को फील नहीं करता, वो परफॉर्म नहीं कर सकता. और उस वक्त एक्टर के ऊपर भी जहनों के ऊपर बंदिश लगा दी गई थी. तो बेसिकली यू सेइंग कि कल के सिनेमा ने आज के सिनेमा पे ये इफेक्ट करा. नहीं, उस वक्त ने वो जो वक्त था बिफोर 71 हमारे पास मुल्क में 1500 स्क्रीनें थी. जी. ईस्ट पाकिस्तान से जी, पहले जी, जी, 1500 जी. स्क्रीनें थी. आज से 10 साल पहले वी वर सिटिंग एट 45 स्क्रीन्स. ऑन विच पॉइंट I would like to G. Ali. ये हमारी आज की If I could just briefly finish this point. जी. From 45 screens, you are now building up to 75 to 80 screens. So this is what the new generation is doing. This is how much the confidence we have in the new generation. Okay, they are all bouncing back with all the difficulties that are there. They are still trying to bounce back. Wonderful. So इसके बाद आगे होगी, please carry on. जी, आप पैगंबर हैं नए ज़माने की और आप मतलब आप ज़रा अपने कुछ रोशनी डालिए, क्योंकि whatever is happening these days, you've been into it, you've been directed by Shahzad Rafiq also. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. ब्यूटीफुल फिल्म के बारे में जब बात होती है या इंडस्ट्री के बारे में जब बात होती है तो इट्स ऑलवेज प्राउड टू बी अराउंड. इवन इतने बड़े आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, नए पुराने सब आप लोग. मैं ये समझती हूँ कि इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, नया पुराना, ये सब बहस बहुत लंबी है. इससे निकल के लेट्स एक्सेप्ट ईच अदर, वर्क, रिस्पेक्ट ईच अदर. जो आर्ट हमें सिखाता है हम्बलनेस एंड ऑल दैट. वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन जो हमारे मुल्क का एक फुकदान मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज हम हर रोल करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, ट्रैवल करते हैं एज एन आर्टिस्ट. मुझे जो एज एन, आप सवाल की तरफ मैं डेफिनेटली आऊँगी, नया पुराना मैंने जो सीखा एज एन आर्टिस्ट या देखा या महसूस करती हूँ या कर रही हूँ, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर इन दिस सोसाइटी विच इज बैड. जी, आपने जो कुछ अभी कहा ना, जो आपको जो कुछ आप अभी कह रही हैं, ये सेशन इसी को एहसास दिलाने के लिए किया गया है. तो मैंने ये महसूस किया, मैंने रिस्पेक्ट सीखी, करवाई, की, कम काम किया, हर
उसमें काम किया। मैं आने वाले बच्चों से, पुरानों से, हमसे सिर्फ यही कहती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कहना और सीखा है आप लोगों से ही, कि आप प्लीज़ आर्ट को एक एक इंसान और हर बंदा, अभी हम लोग शायरों पे बात करते हैं, पॉलिटिशियंस पे बात करते हैं, नेगेटिविटी निकालना या डिस्कस करना ज़रूरी है, उससे हम इम्प्रूव करते हैं, लेकिन डिसोन कर देना किसी भी इदारे को या जज करना, वो उसके लिए नुकसानदेह साबित होता है। सो ये हमारे साथ होता रहा। एज एन एक्टर मैं समझती हूँ जो आजकल बच्चे आ रहे हैं नए, जो टेक्नीशियंस आ रहे हैं नए, वो ऑक्सीजन हैं इस इंडस्ट्री के लिए। वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके पास ना इंस्टीट्यूट्स थे, उनके पास ना ये तालीम थी जो आप लोग लेके आए थे, ना ऐसे राइटर्स हैं, ना ऐसे सिंगर्स हैं, मतलब हैं लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके बावजूद वो इतनी मेहनत, मैंने जब पहली फिल्म की, मुझे याद है कि इंडस्ट्री में उस विसिनिटी में जो हमने बना लिया, वो हमें खुद शौक में हम चले जाते थे कि ये क्या है, और आवाम उस पर भी प्यार देती थी। थोड़ा सा अच्छा काम इस मुल्क में जो है वो आवाम को अच्छा लगता है, लेकिन जहां हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए और ये नहीं अच्छा है, उससे ग्रोथ रुक जाती है हम सबकी। इसी बात पे आपका ये पॉइंट लेके मैं शहजाद पे आता हूँ। शहजाद इज़ वन ऑफ दो सक्सेसफुल डायरेक्टर्स। इनकी एक बहुत खूबसूरत फिल्म इन्होंने हालिया अबाउट अ ईयर एंड हाफ बैक बनाई थी, इश्क खुदा आपने बनाई थी। यहाँ इश्क खुदा, आप नए दौर के हैं, डायरेक्टर हैं, आप अच्छी फिल्में भी बना रहे हैं, और शायद आजकल आप कुछ टेलीविज़न में भी फंस गए हैं थोड़ा सा, मगर आपका मेन फोकस फिल्म इंडस्ट्री पे है। आप पुराने ज़माने की फिल्मों को अगर उसका एक मिक्सचर, थोड़ा सा उसका पार्ट अच्छा वाला उठा के आज की दौर में मिलाएंगे, तो क्या आप नहीं समझते कि आपका सिनेमा, पाकिस्तानी सिनेमा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? सबसे पहले तो मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा अजीब सा हो रहा है कि जिन लोगों को मैं पढ़ता आया हूँ बचपन से, जो मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, वो अपना हमें वहाँ होना चाहिए और उन्हें यहाँ होना चाहिए। तो बहरहाल सर, बात ये है कि हम आज और कल के चक्कर में जो पड़े हुए हैं ना, इसे आज और कल के चक्कर से निकलना पड़ेगा। कल टेलीफोन होता था, वो आपने इस्लामाबाद से जो है ना कॉल जेलम करनी है तो ऑपरेटर के जरिए कॉल होती थी, ठीक है। आज जो बच्चे फिल्म मेकिंग के अंदर आ रहे हैं, उनके हाथ में दुनिया है, उनके सामने, उनके टेबल के ऊपर दुनिया पड़ी है, उनके हाथ में दुनिया है पूरी। तो जो माजी है ना, माजी जो हमारी फिल्में हैं, वो सारी फिल्में जो है ना, उनकी रूट्स जो है ना अदब से निकली हुई थी जी, ठीक है। और बड़े बड़े जय्यद लोग जो है उस वक्त फिल्म मेकिंग में थे। आप 77 तक जो है ना देखें, आपकी फिल्में जो है वो क्या क्या आलीशान फिल्में थी। आप 77 की आईना फिल्म उठा के देख लें, मैं समझता हूँ कि एस्थेटिकली जो है आज भी इंडिया जो है ना, वो उन्हीं फ्रेम्स के ऊपर काम कर रहा है जो नजरुल इस्लाम साहब ने जो है ना शूट किया उस दौर में। गैप कहाँ पे आया? जिस तरह के आसुर रजा मीर साहब ने अभी फरमाया, गैप आया आपके 11 साल मार्शाल्लाह। कोई भी फिल्म होती है, वो अपने किसी भी मुल्क की फिल्म जो होती है, वो उस मुल्क के हालात, उसकी समाजी, उसकी सियासी, उसकी वैल्यूज, उसका रिफ्लेक्शन होती है। उन 11 सालों में मार्शाल्लाह के जो 11 साल जो हमारे ऊपर एक खुद साख्ता एक शख्स ने अपना इस्लाम नाफज किया, उसके अंदर क्रिएशन जो है ना कहीं छुप के रह गई। काम हुआ उस दौर में भी। उस वैशी जट अगर फिल्म बनी है, गंडासा अहमद नदीम कासमी साहब ने लिखा हुआ ना, अदब से ही निकली हुई थी फिल्म, लेकिन उससे आगे क्या हुआ, लोगों ने उसका असर गलत ले लिया, वो हाईजैक हो गया, वो अपना एकदम लाउड फिल्में बनना शुरू हो गई। अब वो लाउड फिल्में क्यों बनना शुरू हो गई कि मार्शल लग गया, आपसे बोलने का हक छीन लिया गया, आप कोई बात नहीं कर सकते थे, तो वो फिल्मों के अंदर लोगों ने अपना कैथारसिस जो है ना वो ढूंढ लिया। वो सुल्तान रई साहब जो लाउड बोलते थे, वो अवाम की एक दबी हुई आवाज थी जो 11 साल स्क्रीन पे हुकूमत की।
उस शख्स ने जहां इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, उसने क्रिएशन रोक दी, लिटरेचर का बड़ा गर्क कर दिया, हर चीज का। तो हमारा अगर इस मुल्क की जब भी जो है ना लिखा जाएगा इसके ऊपर, तो वो 11 साल जो है ना वो उस इतने कत्ल हुए हैं उसमें कि हर चीज का बेड़ा गर्क हो गया। 77 तक आप और इंडिया जो है ना एक साथ जो है ना जा रही है फिल्म में, टेक्निकली जो है ना एक जहां हम रुके वहां से उन्होंने जंप ऐसे किया, वो हमसे 50 साल आगे निकल गए। लेकिन आज जो काम हो रहा है उसे आप आज की ऐनक लगा के देखें। थैंक यू, थैंक यू, ऑस्ट्रेलिया बड़ी अच्छी चीज है। थैंक यू। ये यंग डायरेक्टर्स जो आ रहे हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं, इनके पीछे किसी गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। ये खुदरा पौधे हैं, कहां से फाइनेंस इकट्ठा करके लाते हैं, किस तरह ये फिल्म बनाते हैं, आगे आधे पैसे सिनेमा वाले ले जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन ले जाता है। आप इनसे पूछे तो सही, हिट फिल्में देके भी इन्हें क्या आया, मिलता क्या, बिजनेस है। लेकिन इन हालात में भी जो है ना ये अपना काम कर रहे हैं या हम काम कर रहे हैं, तो इसे आगे बढ़ने दीजिए, उलझाइए ना कल में और आज में। आज भी अच्छा है, आज की वैल्यूज के हिसाब से जो है ना वो देखें कि आज की जो वैल्यूज हैं उस हिसाब से जो है ना सब कुछ हो रहा है, तो कोई बुरा नहीं हो रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फिल्में हैं, हमारे यंग डायरेक्टर्स हैं, उनको माजी की फिल्मों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मेरे लिए जो फिल्में हैं, हमारे जो सीनियर्स ने काम किया है, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक वकील के लिए पीएलडी की हैसियत होती है। वो किसी केस के रेफरेंस के लिए पीएलडी बुक देखता है अपना, जो है ना मेरे लिए जो है ना, मेरे लिए रेफरेंस, मैं आज भी कहीं उलझता हूँ, मैं खलील कैसर साहब की फिल्में देखता हूँ, मैं रियाज शाह साहब की फिल्में देखता हूँ, मैं नजरुल इस्लाम साहब का स्कूल देखता हूँ। तो ये बुनियाद है हमारी, और हमारी बुनियाद बड़ी मजबूत है। अब जो काम हो रहा है, थोड़ा वक्त रह गया है, बहुत सारा फासला जो है ना हमारे लड़कों ने तय कर लिया है, बहुत थोड़ा वक्त रह गया। मैं जहां देख रहा हूं सिर्फ 2 या 3 साल की बात है, आप बिल्कुल इंडिया के बराबर आके खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल खड़े हैं, और पहले भी खड़े थे। मुझे याद है कि 65 की जंग तक इंडियन फिल्में दिखाई जाती थी। रीगल सिनेमा में मैंने जाके लाहौर में आवारा देखी, ये राज कपूर की एंड ऑल। 65 की जंग में ये फिल्में बैन हो गई, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री गिर तो नहीं गई, हम तो मर नहीं गए, कोई ज़मीन पे नहीं पड़ गए कि क्या करेंगे। हमारी फिल्मों ने, जब इंडियन फिल्में चल रही थी उस वक्त भी मुकाबला किया था। एक सिनेमा सामने पाकिस्तानी दिखा रहा है, एक इंडियन, और दोनों जैम पैक जा रहे हैं। ये भी नहीं कि हमारा खाली पड़ा हुआ है। हम वी डिडंट डाई आफ्टर दैट। मगर उसके बाद इस वक्त जो आप एक फरावानी के साथ इंडियन फिल्में एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके सिनेमा हॉलों में धड़ल्ले से चला रहे हैं, और वो आपके अगेंस्ट ही बात कर रही हैं अंदरमानी खेत तरीके से। व्हाई कांट वी स्टॉप देम? What is the impediment? Why are we supposed to stop them? No, I know. I know you are. No. Question hour is coming up. I'm just winding up. I'm just winding them up. I'll give you the question. राजू साहब, मैं कुछ कहना चाहूंगा इसके बारे में। आपको टाइम दूंगा मैं। I just raise the question. I can be wrong. But you have every right. I know Madhya. You have every right. सर देखें, जिंदगी में बाज दुखों का इलाज जो है ना वो जहर से भी किया जाता है। अगर इंडियन फिल्म यहाँ पाकिस्तान में ना आती ना, तो हमारा सिनेमा मर चुका होता। सिनेमास नहीं बनते। एलियन फिल्म हमने बहुत देखी हैं, बाहर की भी, 10 कमांडमेंट्स और क्लियोपेट्रा और दूसरे पिकनिक वगैरह देखी हैं हमने एलियन फिल्में। हम जानते हैं, हमने उससे भी बहुत सीखा है, और उससे भी उर्दू फिल्में बहुत बनाई हैं। मैं इंडियन फिल्म की यहाँ कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा। देखिए, आज जो नया सिनेमा बन रहा है, जो एक नया सिनेमा, एक कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो अपना जो है वो एक कल्चर वो था ना, जब आप बता रहे थे कि जी अपना सारी फैमिली जो है ना जाती थी, और एक कल्चर ये भी है। ये कल्चर सारा जो है ना वो इंडियन फिल्म की वजह से आया है। अभी प्राई आग से चूल्हा जल रहा है, 2 साल इंतजार कर लीजिएगा, ये प्राई आग हम जो है ना बुझा देंगे। I'm so grateful to all these participants here. They spoke so well. We are constrained with time. अगर मेरा इस वक्त प्रेफरेंस ये है कि जो ऑडियंस हैं, मैं उनको अपॉर्चुनिटी दूं कि कोई क्वेश्चन रेज करें, और हमारे सबसे ज़्यादा एक सीनियर, I'm coming to you.
एक बहुत ज्यादा सीनियर, हाँ अच्छा आसिफ, योर डिमांड। मैं सिर्फ इतनी बात ऐड करूंगा, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि आज जितने सिनेमा बने हैं वो सिर्फ इसलिए बने हैं कि इंडियन फिल्म ने ऑडियंस को वापस सिनेमा में लेकर गई। सिनेमास बन इंडस्ट्री। और हमारी फिल्म आप ये देखिए कि पिछले साल जो सबसे बड़ी इंडिया की फिल्म थी वो धूम थी, जिसका बिजनेस 20 करोड़ रुपए का था पाकिस्तान में। जी हाँ, हमारी फिल्म थी वार, वार। जिसका बिजनेस था 22 करोड़ रुपए। जी एक तो हमें ये जहन में बहुत क्लियरली रख लेना चाहिए कि वी डोंट हैव टू कम्पीट विद इंडिया। इंडिया हैज इट्स ओन प्लेस, वी हैव आवर ओन प्लेस। हमारी अपनी एक जगह है, जैसे ड्रामे के अंदर, टेलीविजन ड्रामे में हमने अपनी जगह बनाई है। जब हमने उनको फॉलो करना शुरू किया, वी वर डिस्ट्रॉयड। हमने अपनी जगह क्रिएट की और हमें अपनी जगह क्रिएट करके रखनी पड़ेगी। ये जो आज का टैलेंट है, यही हमारा फ्यूचर है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ये बाकायदा जंग लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। असल जिहाद इनका है कि बगैर रिसोर्सेज के, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ये लेस देन 15% पे काम करता है आज का प्रोड्यूसर। 15% के ऊपर वो क्या काम कर सकता है? आपकी फिल्म, इंडिया जब फिल्म लेकर आता है, और ये लोग compete किसके साथ कर रहे हैं? इंडिया, ये कर रहे हैं हॉलीवुड, ये कर रहे हैं सोशल मीडिया के अगेंस्ट। जिस टाइम की आप जिक्र कर रहे हैं, जब खाना लेकर फैमिली जाती थी फिल्म देखने के लिए, उनके पास कुछ और नहीं होता था। आप कहते हैं कि उस वक्त औरतें बेहोश हो जाती थी रो के। आज टीवी देख देख के औरतें इतनी रोई हैं कि उनके आंसू खत्म हो गए। मैं सिनेमा की बात कर रहा था, अगर आप टीवी का जिक्र कर रहे हैं तो टीवी का मुझे पता है। देखिए, ऑडियंस वही है, ऑडियंस वही है। पीपल व्हेन दे गो टू द सिनेमा, वो एंटरटेन होने के लिए जाते हैं। वो वक्त गुजर गया, वो दे वांट टू लाफ, दे वांट टू क्राई, बट एट द सेम टाइम आपकी ऑडियंस को एंटरटेनमेंट की भूखी है। वो बड़ी स्क्रीन पे म्यूजिक भी देखना चाहती है, रोमांस भी, डांस भी, ये सब चीजें देखना चाहती है। And they also want to see good songs. और मैं आपको बताऊं कि हमारी ऑडियंस पाकिस्तानी सिनेमा को चांस दिए चली जा रही है। हर जो नई फिल्म लगती है उसके ऊपर लोग जाते हैं देखने, उतने ही पैसे खर्च करते हैं जितने इंडियन फिल्म के ऊपर खर्च करते हैं। जी हाँ। तो आप कंपीट किसके साथ करें? इनको टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, इनके साथ इन्वेस्ट कीजिए, और यही इन्वेस्टमेंट, ये आप उनसे कहिए, मुझसे ना कहिए। जिस वक्त मैं सबसे कह रहा हूँ कि ये जो इंटरेस्ट है कि हमारा हाउसफुल अगर है, और वो दे इंटरेस्ट इज अबाउट पाकिस्तानी सिनेमा, और पाकिस्तानी सिनेमा इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज। सिर्फ मेरा कहना यह है कि हमें अपनी नीश क्रिएट करनी पड़ेगी, अपनी जगह क्रिएट करनी पड़ेगी। हम हर फिल्म जो है उसके अंदर 400 डांसर्स के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। हमें अपने सब्जेक्ट्स, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, सिंपल स्टोरीज लेके बनाने पड़ेंगे। We have subjects. Bahar Begum, you agree with पुरानी what फिल्में भी Asif ऐसी ही said? होती थी। Bahar Begum, you agree with what Asif has just? He's right. हाँ, हमें थोड़ा please. सा आगे निकलना Could you हाँ बोलिए। मैं समझती हूँ इस बात को कि देखिए, कल के और आज के दौर में मैं पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ, बहुत फ़र्क आया। जी बिल्कुल। और ये फ़र्क इतना ड्रास्टिक आया है कि हम लोगों ने इसको रियलाइज़ बहुत देर से किया है। वी टुक लॉट ऑफ टाइम कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या होगा। जबकि देखें, पहले सिर्फ एंटरटेनमेंट एक फिल्म होती थी, आज घर में हर चीज़ एंटरटेनमेंट के है। ये मोबाइल ही नहीं, सब compete कर रहे हैं। मैं अपने घर में देखती हूँ, मेरी पोतियाँ, उनको बात करने की फुर्सत नहीं है, वो मोबाइल के साथ लगी होती है। मैं अभी भी पूछती हूँ इसकी मैसेज कैसे करना है। जी, आपने अपना इनविटेशन का ईमेल भी अपनी बेटी के नवासी के ऊपर मंगवाया था कि आपको कुछ नहीं पता था। तो मतलब यह है कि अब हमारी, जहाँ तक फिल्म का ताल्लुक है, हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि आज का माहौल क्या है। उस एक्सटेंट तक तो नहीं हम जा सकते, बट स्टिल पिछले दौर से निकल के और अगले दौर को थोड़ा सा मिला के उसकी एक अच्छी फिल्म तो बना सकते हैं। ये हमारे राइटर्स को चाहिए। हमारे शहजाद रफीक साहब ने भी थोड़ा अर्सा पहले एक पंजाबी फिल्म बनाई थी जिसके म्यूजिक सुपर हिट हुआ था। कौन सी? मोहब्बतां सच्चियां, ब्यूटीफुल म्यूजिक। तो इस तरह के लोग एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं।
टेलीविज़न क्योंकि घर में चलता रहता है, मेरे कमरे में 24 घंटे चलता है, मुझे नहीं पता उस पर क्या चल रहा है क्योंकि मैं देखती कम हूँ। सिर्फ ये होता है कि पास कोई बैठा बातें कर रहा है। There's hardly anything to see on this, I'm sorry to say, because पहले ड्रामे जो होते थे इसी तरह जिस तरह आप फिल्म को डिस्कस कर रहे हैं, वो जब टेलीविज़न शुरू हुआ था उस वक्त जो ड्रामे होते थे वो आज भी याद है। जनरेशन भी आज जो ड्रामे होते हैं, मैं प्रैक्टिकल इसलिए बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे घर में एक बच्ची जवान हो रही है, वो जब ये ड्रामे देखती हैं, शादी हो गई नहीं हुई, टूट गई क्यों हुई, दुल्हन बनी बैठी है, तसव्वुर कर रही है उसका पिछले बॉयफ्रेंड कौन था। दिस इज नो वे टू शो। ये सिर्फ एक घर की प्रॉब्लम नहीं है, मैंने थोड़ी सी इसलिए मिसाल दी है कि मैंने इसको फील किया है। तो जिन माशाल्लाह सब घरों में जवान बच्चियां हैं, सब है, दे शुड गिव सम लेसन। अच्छे अच्छे ड्रामे इन लोगों ने शुरू में बहुत खूबसूरत ड्रामे बने। आपने, अब मैं कल ही आपसे पूछ रही थी, वो एक ड्रामा था जो वो स्कूल बच्ची जाती है तो जी, रोग दैट वाज अ लवली ड्रामा। उसमें एक सबक था, एक बच्ची का क्या कसूर था। एक बच्चों ने, उसी की उम्र के बच्चे ने उससे बदला ले लिया और वो सारी उम्र वो भुगतती रही, उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह के इशू बेस्ड प्लेस जो हैं वो आप बहुत ज़्यादा नहीं बना सकते। नहीं, वो ठीक तो है। अब इसी तरह से फिल्म जो है, फिल्म के अंदर आप अगर यही सब्जेक्ट फिल्म में ले जाएं तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये है कि देखिए, अब फिल्म में अगर आप वेस्ट की फिल्में देखें तो वेस्ट की फिल्में आज तक वर्ल्ड वॉर 2 से बाहर नहीं निकली। उसकी बहुत सारी फिल्में हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर होती है। बैकग्राउंड वो है लेकिन रोमांस भी होता है। बिल्कुल। इसी तरह से अब जो है वो नए दौर की जो फिल्में हैं, अमेरिकन स्नाइपर अगर आप देखें तो वो फिल्म जो है वो आज की वॉर जोन के अंदर है। हमारी ऐसे सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट अभी किया है जो कि बायोग्राफी है, जो कि पहले नहीं कभी एक्सपेरिमेंट हुई। मंटो पे हम लोगों ने एक फिल्म की है जो प्रॉबली इस साल के मिड में किसी वक्त हम लोग रिलीज़ करेंगे। मेरा सिर्फ कहना यह है कि हमें हर जगह पे सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं। इट इज़ एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हमारी ऑडियंस को एंटरटेनमेंट करना है, यूथ को रिफ्लेक्ट करना है, यूथ की थॉट को जो है वो आगे लेके चलना है। बिल्कुल आसिफ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं आपको टोक रही हूँ। मेरा ये मतलब नहीं कि हर वक्त हम दरस देते रहें, या ये कोई भी नहीं देखेगा। जहाँ तक ताल्लुक है, फिल्म आपको जाके देखनी पड़ती है। यू हैव टू बाय टिकट। किस तरह टिकट लेते हैं, फिर अंदर जाते हैं 3 घंटे। आप मेरे साथ अगर आप बैठे हुए तो मैं बात नहीं करती, मैं देखती रहती हूँ, कुछ शॉट मिस ना हो जाए। पहले तो 3 मंजिला चढ़ना भी पड़ता था सीढ़ियों से सिनेमा, बैम्बिनो सिनेमा में जी। तो आज कोई तस्वीर ना करे कि कहाँ जाए, उसको तरद्दुद के साथ आप जाते हैं। और फिर अकेले नहीं, आपका शौक होता है चलो दोस्त यार साथ हैं, या सहेलियाँ साथ हैं, या फैमिली साथ है। तो एंटरटेनमेंट लाजमी होनी चाहिए। देखिए, जब टेलीविज़न 65 या 64 में आया है, उस वक्त के जो ड्रामे आप देखें वो आज भी याद हैं। वो बड़े सबक आमोज ड्रामे थे, लेकिन आज भी हम उनको इसी तरह याद कर रहे हैं जैसे फिल्म को कर रहे हैं। फिल्म के लिए एक तो 3 घंटे आपको निकालने पड़ते हैं, उसके लिए एंटरटेनमेंट बहुत लाजमी है। म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, कॉमेडी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी पीछे बैकग्राउंड में होनी चाहिए। इट टेक्स अ लॉन्ग पैसेज। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि हमारे राइटर्स अब जो हैं दे स्टार्टेड रियलाइजिंग, और ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने तो खैर बनाई भी अच्छी अच्छी फिल्में, भले पंजाबी बनाई है। क्या फ़र्क पंजाबी सॉरी नहीं, मैं एक पंजाबी को इसलिए कह रही हूँ कि हमारे पंजाब में बड़ा क्रिटिसिज्म होता है इस साइड पे कि जी पंजाब की फिल्में, पंजाब की फिल्में। थैंक यू वेरी मच। सिंध काम कर रहा है, सिंध काम कर रहा है, कराची काम कर रहा है। इट्स जस्ट आई एम सो ग्रेटफुल टू यू आसिफ रज़ा मीर, 15 मिनट, my very good friend Bahar Begum, my very good friend Jia Ali, my partner in Jab Jab Dil Mile, and Shahzad Rafiq and Yasir Jaswal for taking out time and coming here for the subject which I thought would create an impact, और कुछ उसमें से ऐसी चीज़ें
जो उन पे मुझे और कई लोगों को कुछ गलत फहमियाँ हैं और अपने हमने आइवरी टावर्स बनाए हुए हैं, उनको आप तोड़ेंगे या बनाएंगे और आप बताएंगे हक़ाइक़ क्या हैं, क्योंकि आप लोग इनमें ज़्यादा गहराइयों में हैं। हम तो अदाकारी करते हैं, बैंकार हैं बेसिकली अदाकारी। मैं अपनी मिसाल ले लूँ या ज़्यादा जनरल पब्लिक, और यहाँ बड़े बड़े लोग इस वक्त ऐसे मौजूद हैं कि आपसे और हम सबसे कहीं खुद ज़्यादा जानते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर बीइंग वेरी लिटरेट। बड़े बड़े यहाँ नदीम भाई बैठे हैं, हमारी मदिया ने अभी क्लास ले ली, और मतलब आई नो ऑफ कोर्स एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट शी डू दैट। और ज़हरा आंटी, ज़हरा निगाह साहबा बैठी हैं, और मैं किस किस के नाम लूँ, अहमद शाह हमारा, और इंतज़ार हुसैन साहब जैसा इंस्टीट्यूशन, द मैन, only man who was nominated for Booker Award. Can you imagine? A very good ovation for him. मेरे इस सेशन की ये इज़्ज़त अफजाई है। अल्लाह ताला के आगे मैं बस सजदा हूँ कि इतने बड़े बड़े लोग, इंक्लूडिंग किश्वर आपा, जो जिनसे बात करते वक्त मैं 6 दफ़ा सोचता था कि मुझे जूता पड़ेगा, और मैं अपने वीकेंड विद राजू जमील में जब कभी परप्लेक्स हो जाता था कि कुछ वाक़या नूरजहाँ का मैं सुनाऊंगा, तो मैं इनको फ़ोन करता था तो पहली डांट पड़ती थी कि रात को 10 बजे मुझे फ़ोन मत करियो तू। अब मैं तो मुझसे तू पूछने बैठ गया, मगर मैं कहता था आप मेरी आपा हैं, मैं जमीलुद्दीन आली का बेटा हूँ, आई हैव प्रिविलेजेस फॉर एवरीथिंग, एंड दे इन्होंने मुझे बहुत सर पे शफ़क़त रखी। मेरा सब्जेक्ट ये था जो मैंने अमीना बेगम से, OUP से, राहिला और इनकी टीम पूरी से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ये करें, तो इन्होंने मुझे इज़्ज़त अफजाई दी कि मैं ये सब्जेक्ट बहुत दिन से लिखता रहता हूँ, चाह रहा था, तो आज खातिर ख़्वाह इसमें कुछ निकला। अब मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करने के बाद ऑडियंस में सबसे पहले एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे यहाँ, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के एक मैगज़ीन को एज एन एडिटर चलाया, ईस्टर्न फिल्म के नाम से बहुत मशहूर चला है काफ़ी अरसे, आसिफ भाई हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू या माइक ऑन कीजिएगा, माइक ऑन। स्टिमुलेटिंग डिस्कशन रहा। आप बाहर तो हमारी, इन्होंने तो हमारी पुरानी ज़िंदगी में भी बाहर लेके आई थी ये तो आपसे 2-3 बार सर 1 मिनट लूँगा, सर नहीं 2 मिनट। हम लोग ईस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्री को कहीं डिस्कस नहीं किया, ये जो कि जहाँ ऐसी बंगला और उर्दू फिल्में बनी थी, आखिरी स्टेशन सुरूर साहब का, और जहाँ पर कि तलाश फिल्म बनी थी, आखिरी स्टेशन तलाश फिल्म ने जब 64 में दिसंबर में जब रिस्ट्रिक्शन हटाया गया पुरानी इंडियन फिल्मों से, तो एकदम दिलीप कुमार की, राज कपूर वगैरह की फिल्में आई, लेकिन तलाश ने गोल्डन जुबली की, जी बिल्कुल, बाजी ने सिल्वर जुबली की, चंदा तेरी चांदनी में जिया जला जाए रे। और उस जमाने में करतार सिंह, आपको याद होगी, उसने दिल्ली में गंगा जमुना और जिस देश में गंगा बहती है के मुकाबले में उसने भी कोई 15 हफ्ते चली थी दिल्ली में, जो कि इससे पहले कोई पाकिस्तानी फिल्म नहीं चली थी। तो एक तो ये बात है, हम उसको इस तरीके से भूल गए जैसे कि हमारे मौरखीन का ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ मोहम्मद बिन कासिम से पहले नहीं थी। तो दूसरी बात ये कि हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया हुकूमत के अलावा और ज़ियाउल हक़ से पहले, वो उन लोगों का था जिन्होंने जाल मूवमेंट चलाई, जिनके अब मर गए हैं वो, तो उन लोगों ने चरबा फिल्में बनाई। वो VCR का ज़माना नहीं था, इंडियन फिल्में देखने लोग काबुल जाते थे या अमृतसर जाते थे। सही बात, बिल्कुल। तो तीसरी बात, जो लोगों ने जो बात कही कि 15,000 स्क्रीन थे, यानी 1500 स्क्रीन थे, तो मैं जस्ट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड ये बात कर लूँ कि दिसंबर 1970 में हमने एक सर्वे किया था एग्जिबिटर्स एसोसिएशन के तौर पे,
और वो जनवरी 1971 इशू में छपा था। कुल 415 सिनेमा हॉल्स थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, जिसमें से कि 103 या 104 ईस्ट पाकिस्तान में थे और कोई 80 के करीब कराची में थे। तो उस ज़माने में तो इतने सिनेमा हाउस थे कि नाज़िबाबाद में ही 3-4 सिनेमा हाउस थे कराची में। तो लेकिन वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने OUP की तवस्सुक से इतने हमारे हमायदीन जो यहाँ आए हुए हैं और ऑडियंस उनको आपने बताई ये बातें। आसिफ भाई थैंक यू सो मच। शुक्रिया। एनी अदर क्वेश्चन? शुक्रिया जी आसिफ वो भाई। वहाँ वो एक खातून है। मैं सर आप जी। सो सॉरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो लाइन कटी ग्रोथ की वो 71 से कटी, जिसका जिक्र आसिफ साहब ने किया। मैंने इस पे रिसर्च की। 58 फिल्में मशरकी पाकिस्तान में उर्दू में बनाई जो यहाँ रिलीज हुई। पहली बहुत है सही बात नदीम भाई, सही बहुत बात। है, नाम है 58 मैंने रिसर्च की। उसमें पहली रंगीन फिल्म भी मशरकी पाकिस्तान से आई, संगम उसका नाम था। संगम जी हाँ। और जो 1000 साल म्यूजिक का जो बुड्ढा मर गया और जो म्यूजिक वहां से आया वो तब्दीली ला रहा था, जिसमें सुबलदास, करीम शहाबुद्दीन, खान अतौर रहमान, क्या बात है, ये बड़े नाम थे जो आ रहे थे उसमें। सरूर बाराबंकी लिख रहे थे, जी हाँ जी हाँ। अख्तर यूसुफ लिख रहे, और कमाल का सिनेमा था जो फर्क डाल रहा था। फर्क कहां डाल रहा था? रियलिस्टिक सिनेमा था। और दूसरा सेटबैक कराची की फिल्म जब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई, स्टूडियो वहां बंद हुए, कराची भी फर्क डाल रहा था क्योंकि वो उन मसाइल को लेके आ रहा था जो कराची के मसाइल थे, और बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई थी। तो ये जो पूरा पॉलिटिकल जो टर्मोइल रहा उसमें ये सारे फैक्टर्स हैं। और सच्ची बात ये है कि हमारी फिल्में म्यूजिक में बहुत अच्छी थी, अदाकारी में बहुत अच्छी थी, सब्जेक्ट्स ज्यादा अच्छे नहीं थे। और जो सब्जेक्ट अच्छा एक फिल्म में आया उसने आउटस्टैंड किया, वो लाखों में एक थी जिसने पहली बार इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया था। थैंक यू वेरी मच नदीम भाई, थैंक यू सो मच। असगर साहब, मैं इसी जगह आपकी बात को आगे करूंगा। बहुत सारी फिल्में जैसे वहाँ से ईस्ट पाकिस्तान से इधर आ रही थी। हमारी फिल्म थी नागमनी, जिसका बेस था ईस्ट पाकिस्तान, रीइंकारनेशन पे बेस कर रही थी। मन तेरे मानो, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हो सकी वहाँ पे, वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से रह गई और यहाँ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है उसका असर हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने इस वक्त की है वो ये है कि रियलिस्टिक सिनेमा, वी एक्सेल इन दैट एंड दैट इज व्हाट वी शुड फोकस ऑन। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग। बिगड़ी बना दे, मैं रो रो दुआ करूं। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि देखिए, वी मस्ट लर्न फ्रॉम हाउ द इंडियन सिनेमा हैज डेवलप्ड। वो ऐसे डेवलपमेंट नहीं हुई। उनके जितने बुजुर्ग काम करने वाले थे उन्होंने अपने बच्चों को आगे इस बिजनेस के अंदर लेकर गए, उन्होंने इनकरेज किया। मुझे जिस दिन मैंने पहला प्ले किया था तो मेरे वाले साहब, जिन्होंने सारी उम्र इस इंडस्ट्री में गुजारी, उन्होंने कहा कि यार मैंने कुछ नहीं कमाया, तुम भी कुछ नहीं कमाओगे, सो लाइन चेंज कर लेना। अच्छा, वो सिर्फ इसलिए था कि इस बिजनेस को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। हालांकि इस बिजनेस के अंदर लिखने वाला इतना इतना बड़ा नाम था। उस वक्त ख्वाजा खुर्शीद अनवर जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, आज आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है। सो आई थिंक दैट इज द इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव टू मेक। हमें अपनी यंग जनरेशन को इनकरेज करना चाहिए कि ये बिजनेस ऐसा है जिसमें जाइए, पढ़िए और वापस आके। आज इंडिया में सबने टेक ओवर नई जनरेशन ने किया। वेरी थॉट प्रोवोकिंग, थैंक यू। आई हैव सबा Zia Jalandhari, the great managing director of PTV, and she's herself a very articulated person. She has a question to ask. I have just a point to make, which I thought Could you please stand up? जो मिस हो गया है कि उस जमाने में सिनेमा में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग थे। फिल्म में फैज साहब की का स्क्रिप्ट उन्होंने फिल्मों में लिखा, ऐसे लोग फिल्मों में आ रहे थे। राजेंद्र सिंह बेदी की उस पर एक चादर मैली सी पे फिल्म बनाई गई। रजा मीर साहब, एक्टर्स में वहीद मुराद, बहार बेगम, हबीब साहब, पढ़े लिखे लोग थे। द ओनली रीज़न टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, क्वालिटी जो गिरी है, वो इसलिए है कि अब पढ़े लिखे लोग फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आ रहे, उस तरह के इंटेलेक्चुअल्स, उस लेवल के। वो लतीफ़ा याद आ रहा है मुझे कि एक बच्चे ने कहा कि अम्मा मैंने लिखना सीख लिया है,
तो माँ ने कहा लिख के दिखा, उसने कुछ लकीरें खींची, माँ ने कहा क्या लिखा है, तो कहता है लिखना सीखा, पढ़ना थोड़ी सीखा। हम उस लेवल को, वो वी हैव टू चेक दैट, आई फील। वो नेचुरल ट्रांजिशन। सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट करने लगी हूँ एक बात पे। देखिए, हम जिस दोनों वक्तों को डिस्कस कर रहे हैं, उस वक्त जो पढ़े लिखे लोग थे उनको काम लेने का तरीका आता था और काम करने वाले सीखते थे। सीखना जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आज मैंने बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां देखी हैं, मैं उनमें से काम भी करने की मैंने कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सलाम करके वॉकआउट करके कि जी हमें आता है, हमें आता है। दिस इज नो वे, ये काम ऐसे नहीं आता। ये काम इतना गहरा है कि आप सारी उम्र करते रहेंगे, फिर भी आप सोचेंगे मुझे कुछ आया है या नहीं। ये इतना गहरा काम है। तो उस वक्त क्योंकि सीधा साधा माहौल था, जो भी था, तो एक्सप्रेशन ज्यादा था। अब एक्सप्रेशन कम है और एक्शन ज्यादा है। इसलिए ये चाहे टेलीविजन हो चाहे फिल्म हो, टेलीविजन और फिल्म कोई अलग चीजें नहीं हैं। ये जैसे कहते हैं ना कि अगर फिल्म माँ थी तो उन्होंने आगे बच्चे पैदा कर लिए, टेलीविजन बहुत सी चीजें आ गई। इट्स वेरी नाइस। हम लोग, मैं खुद, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप टीवी पे काम क्यों नहीं करती आप। अच्छा, ये मेरा दिल करता है करने को, लेकिन जब मैं वहाँ का माहौल देखती हूँ, हमें आते पड़ी हुई हैं पुरानी सॉरी बेवकूफ़ों वाली सीखने की, रिहर्सल्स की, वो नहीं मिलता, मैं फिर पीछे हट जाती हूँ। ये थोड़ी प्रॉब्लम। बिल्कुल। आई हैव हमारी मधिया एंड मैं मधिया से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ और इस वक्त तो काफ़ी डरा हुआ भी हूँ, मगर मधिया से मैं ज़रूर कहूँगा कि शी शुड express her views and thoughts on what has happened today and what she would like to say. Mic on. Thank you, Raju ji. It's been a very interesting discussion, and my question now is to either Shehzad साहब जिन्होंने बहुत ही माकूल बातें की, आसिफ साहब ने, and यासिर, anyone could answer it कि अभी जो बात हुई है पढ़ा लिखा होना नहीं पढ़ा लिखा होना, मैं जो देख रही हूँ, I think the past was great and the present also. It's very inspiring to see what young people are doing. मैं सब फिल्में देखती हूँ, जितनी आ रही हैं आजकल मैं देखती हूँ, अच्छी हैं या बुरी हैं, आई मेक इट अ पॉइंट टू गो एंड सी, सो बिकॉज देन वन कैन बी इन अ पोजिशन टू जज एंड डिस्कस इट, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज़ जो मुझे तकलीफ होती है बेहद, हालांकि सब अब जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, द यंग फिल्म मेकर्स हु आर इमर्जिंग in the last couple of years, they're all educated. Many of them have gone to film training institutions abroad and in Pakistan. Lekin because most of them also happen to be from the elite, so a lot of their work, they're not familiar with the ground realities in Pakistan. They're not, they try to reflect the ground realities. Lekin for instance, a play like what was that जिसमें समिया मुमताज़ थी, जो बल्तिस्तान दुख्तर, वो इतनी अनरियल थी कि आप शूट वहाँ कर रहे हैं स्कर्दू और बल्तिस्तान के एरिया में कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे अ ट्राइबल जिरगा इन सम ऑफ द फाटा एरियाज, जहाँ का कल्चर बिल्कुल फ़र्क है, लोग बिल्कुल फ़र्क हैं, इश्यूज़ बिल्कुल फ़र्क हैं। सिमिलरली विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, सबिया सुमार्स फिल्म गुड मॉर्निंग कराची, again, I mean, such an elitist interpretation of a model who's wearing these, I mean, I have no objections to what they wear, but she goes to her own mohalla, कराची के अंदरून शहर में, और वहाँ पे उसने जिस किस्म का लिबास पहना, it's just not possible. I mean, there are models coming from those areas, but they wouldn't go, and speaking English all the time. So I think, you know, that is off-putting, because you have to be thorough in your research. पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं है कि आप ग्राउंडेड हैं अपनी रियलिटी में, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, एंड इट्स माय एडवाइस, आई मीन, दैट पीपल शुड रिफ्लेक्ट दैट इन देयर वर्क एज वेल, so that it is truly called cinema from this area and from Pakistan. Very well put up. Thank you, Madhya. Very well put up. राजू साहब, मैं बात करूँगा। We have a short time. Please go ahead. Short time रह गया जरा, मुझे 2 warnings मिल गई हैं। ऐसी चीज़ें हैं, कुछ हुई हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं, लेकिन चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। अभी मैं रिसेंटली जो है ना फिल्म बना के आया हूँ सल्यूट के नाम से। मैं उस बच्चे के ऊपर फिल्म बनाई, बायोग्राफिकल फिल्म है ये,
एतजाज हसन, जो हंगू में जिसने स्कूल के बाहर टेररिस्ट को पकड़ लिया था और उसके साथ ही वो जब ब्लास्ट में शहीद हुआ। तो मैं पूरा क्रू लेके हंगू गया और हर आदमी हमें डराने वाला था कि हंगू ना जाए। हंगू को 3 एजेंसियां लगती है और वो जंक्शन है, सारा जो ट्रेसपास है वो उधर से होता है, इतना सेंसिटिव एरिया है हंगू। लेकिन मैंने जाके उसके घर में शूट किया, उसके मोहल्ले में शूट किया, उसके स्कूल में शूट किया। तो चीजें ग्रेजुअली बेहतर हो रही हैं इंशाल्लाह। विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉजिटिव चीजें डेफिनेट होंगी। With that, I'd like all the कोई question? देखिए, I am left with very short time. I can just allow you about a minute. Please go ahead. Half a minute. I am from India. I know. Please. I am from India, and I would like to comment that we must remember films before 47 made in Lahore, and also the artists, whether they are music composers, whether they are actors, whether they are lyricists, we must remember them. We must remember a great playback singer like Salim Raza. We must remember Firoza Begum. We must remember so many other artists who were there, composers like, not only you mentioned, of course, the greatest composer, then there was Feroz Nizami, and then there was Chishti, there were so many other. Apart from actors, I knew Muhammad Ali and Sheba. In 1972, when the situation was like that, I was in Tashkent Film Festival, and they were also sitting. I went over to him. I said, please join the Indian delegation. I brought both of them to join us. You see, we have to remember all those great artists from the past also and do something. I have organized functions for the last 15 years in India in memory of everybody, even Iqbal Bano, even Reshma, who passed away. I organized the first function in Delhi. Sir, thank you very much for your question. You're from India. I find it very essential to tell you here, the past 2 years I've been holding my shows like Weekend at Raju Jameel, and I dug out from 1947 till the present era, and remembering all those people you have mentioned in your whatever you spoke to us, and nobody can forget songs like Jab Tere Shahar Se Guzarta Hoon of W.Z. Ahmed, and from that till that era, till present era, we remember everything. We have written a lot about them, and this show was primarily focused on what has happened in past and what will happen in future, for which I thank my guests Asif Raza Mir, Bahar Begum. I would like to please ovation for them, and Jia Ali, Shahzad Rafiq and Yasir Jaswal. And thank you, ladies and gentlemen, for attending the show. Ladies and gentlemen, I would also like to take the opportunity to thank our honorable, beautiful and glamorous panelists here, Asif Raza Mir Saab, Bahar Begum, Jia, आप सब लोगों का आने का बहुत शुक्रिया. Thank you.